Namaskaram. Today we are organizing a program in this Gandhi Jayanti on the topic of Gandhi and inspiration for today's youth will be presented by Comrade Aflatun ji. He is from Varanasi and also the General Secretary of Samajwadi Jan Parishad. Mahatma Gandhi is the person who influenced the most influenced person in this 20th century and for some centuries. He unleashed a power of people, common power people in India, which led to the freedom of India. He organized three main struggles in which billions of people participated. First one, the non-movement of 1920, and second one, 1930s, 30, the Sword Satyagraha, and finally, the Quit India movement, in which the largest number of people jailed and became martyrs in a revolution in the world. Several other struggles also Mahatma Gandhi participated, including the Champaran Satyagraha. In his most important and powerful struggle, the Quit India movement, actually was conducted by the youth of India. Dr. Lohia, Jayaprakash Narayan, Yusuf Mahrali, all those socialists were very young people who led the struggle. Usha Mehta, Aruna Asif Ali, so many youngsters from Kanyakumari to Kashmir, from Peshawar to Dhaka, people participated in it. Of course, the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan like people very strongly participated, but the main force was youth. Quit India movement was the important struggle which actually make a strong blow to the British Empire in the world also. That led to the struggles and liberation movements in all other Asia and Africa, African continents, countries also. Today, we are talking about the youth. Mahatma Gandhi, an inspiration for the today's youth. Today, India is in a very crucial stage. Those who opposed the freedom struggle and the movement, and those who served the British are now the big force in India. It is because of the wrong policies of the previous governments in India. Every day we are hearing about rapes. Women are so crucially oppressed. The rape against the
Dalits, Adivasis, minorities, and the violence against the Dalits, Adivasis, and minorities are at peak. In an old sense, India is undergoing a slavish situation. The farmers are being uprooted, and the villagers are being uprooted. The unorganized sector workers are suffering the most. In this situation, we need a radical change, a total change. A total change can be attained by the power of youth. So all these things are expected to discuss with Aflatunji. First of all, he speak in English language, and then the Hindi language. Please. So we may listen a very well speech by Aflatunji in this Gandhi Jayanti day. Gandhi Jayanti. Please wait, Joshi. Okay. Yeah, I am waiting. Aflatunji needs time for a while. Samajwadi Jan Parishad is a party which formed on the basis of the basic contributions of Mahatma Gandhi, Dr. Lohia, Jayaprakash Narayan, Dr. Ambedkar, and Kishan Patnaik. These people are not icons, but we are taking inspiration from their fundamental contribution. At the same time, we had formulated a policy which is suitable to the present situation. Samajwadi Jan Parishad is a new era of the socialist movement. Otherwise, it was a stranded movement. Socialist movement became stranded because all of its forms lost its directions. Then Kishan Patnaik and Sachidanand Sinha's thought, and Sunilji and Jugal Kishore Raibi's contributions, we actually made the socialist movement a new birth. Are you ready, Aflatunji? I am ready, but I wanted to speak in Hindi first. Okay. First, because of the South Indian people, I am preferring to speak. I am ready to speak in English, but afterwards. You just check, after some time, you just check how many people who don't understand Hindi are there, and then you interrupt me and I will stop. No question of interruption or discussing about it. You please start either of your language which is preferred to you. Okay. Should I start? Yes, start, please. Namaskaram. First of all, I must apologize because I don't know Malayalam, and the Kerala unit of Samajwadi Jan Parishad has organized this talk. So I especially want to thank Comrade Joshi Jacob and Jacob Joshi, his son, who knows the technical know-how of setting up
this talk. So I am going to speak first in Hindi, and then after a while, when Comrade Joshi Jacob directs me, I will stop and start in English. साथियों, मैंने पहले अपने हिंदी मलयालम जानने वाले साथी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि इतने वर्षों से केरल से संपर्क होने के बावजूद अभी तक जो उत्तर भारत के साथी हैं उन लोगों ने मलयालम सीखी नहीं है, और उनसे क्षमा मांगते हुए पहले मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूँ। आज विषय दिया गया है युवजनों के लिए गांधी। ये विषय एक तरह से देखा जाए तो बहुत कठिन है, और दूसरी तरफ से सोचा जाए तो बहुत आसान है। ये जो मैं जिस शैली का उपयोग कर रहा हूँ कि कोई चीज कठिन भी है और सरल भी है, ये शैली गांधी जी कभी कभी कुछ सवालों का जवाब देने में इस शैली का उपयोग करते थे, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि किन सवालों के जवाब में गांधी जी भी ऐसा करते थे कि ये सरल भी है और कठिन भी है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कठिन क्यों है ये विषय। आज के जमाने में जो नौजवान है वो गांधी जी को किस रूप में आसपास देखता है। गांधी जी की जितनी प्रतिमाएं, और देश भर में हजारों लाखों प्रतिमाएं गांधी जी की लगी होंगी, मूर्तियां, हम पाते हैं कि ज्यादातर मूर्तियां बुजुर्ग गांधी की हैं, बूढ़े गांधी जी की हैं। चंपारण में सत्याग्रह करने वाले गांधी जी की मूर्ति हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी, या दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दौरान, या वो घटना जब फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद फर्स्ट क्लास के डब्बे से गांधी जी को धक्के दे करके गिरा दिया गया था। उस समय उम्र के लिहाज से गांधी जी युवा थे, लेकिन वो छवि, वो मूर्ति हमें देश भर में दिखाई नहीं देती है। हमें या तो दिखाई देती है बुजुर्ग गांधी जी की मूर्ति, या तो फिर वो 3 बंदर वाली छवि, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो वाली। तो जब ये मूर्तियां हम देखते हैं तो फिर नौजवान सोचता होगा कि भाई गांधी जी तो क्या बुजुर्ग होने के बाद ही वे सक्रिय हुए, क्या नौजवानों के लिए गांधी जी नहीं है? तो इस लिहाज से ये विषय कठिन हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये विषय बहुत सरल है। जो आज का विषय है युवजन और गांधी जी, ये सरल क्यों हो जाता है? ये सरल इसलिए है, जोशी ने अंग्रेजी में अपनी भूमिका में भी कहा कि हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो नौजवान की जो हमारी परिभाषा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सन 74 में 15-16 साल की हमारी उम्र रही होगी मेरी, और उस समय जब बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोगों के मन में था कि जयप्रकाश भी नौजवान हैं, ये हम सोचते थे। और उसके पीछे ठोस कारण था। कारण ये था कि नौजवान की जो परिभाषा हमने सोची थी,
समझी थी, जो नौजवान होने के गुण हमने देखे थे, वो गुण क्या थे? पहली बात, जोखिम उठाने का साहस, और ये एक नौजवान में गुण होता है कि वो जोखिम, रिस्क उठा सकता है। दूसरी बात, अपने से ऊपर की पीढ़ी की बात को चुपचाप नहीं मान लेता है, ठोक बजा करके देखता है, उसके बाद ही उस बात को मानता है। ये दूसरा गुण। तीसरा गुण जो बहुत महत्वपूर्ण था कि नौजवान के अंदर ये विश्वास होता है कि इस दुनिया को हम बदल सकते हैं, और इस लिहाज से हम लोगों को लगता था कि लोकनायक जयप्रकाश एक नौजवान हैं। और गांधी जी के इतिहास को भी जब हम देखते हैं, सन 1869 में उनकी पैदाइश हुई और सन 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं, तो एक अच्छी खासी उम्र हो गई थी, लेकिन उनका सामाजिक राजनैतिक जीवन जो 1916-17 से लेकर के 1948 तक भारत में रहा, उस जीवन को अगर हम देखें तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व था गांधी का जिसने इन 30 सालों तक देश के लाखों लाख लोगों को बगावत करने के लिए प्रेरित किया। लाखों महिलाएं जो घूंघट में रहा करती थी, वो घूंघट उठा करके सत्याग्रह में भाग लेने लगी। भारतवर्ष की जेलों में कई कई बार नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और जिसकी चर्चा जोशी कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तमाम ऐसे मौके आए जब देश के लाखों लाख लोग जेल जाने के लिए तैयार रहे। और नौजवानों को मैं खास करके एक प्रसंग बताना चाहूंगा, संभव है कि उन्होंने सुना नहीं होगा। गुजरात में धारासणा नाम की एक जगह है। धारासणा में नमक का एक डिपो था और नमक सत्याग्रह करने वालों ने ये घोषित कर दिया था कि उस डिपो के पास हम जाएंगे और सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का तरीका क्या था? 20-20 की कतारों में लोग खड़े रहते थे, वे आगे बढ़ते थे, पुलिस के द्वारा उनके सर पर लाठियां बरसाई जाती थी, कईयों के सर फट जाते थे और समुद्र के नमक वाले पानी में उनको फेंक दिया जाता था, यानी नमक का पानी उस फटे हुए सर में जाता था। साथियों, उनकी पीछे फिर 20 की कतार लगी होती थी और वो 20 की कतार के लोग देख रहे होते थे कि सामने वाले लोगों को किस तरीके से पुलिस ने मारा है। उनके सर फटे हैं और सर फटने के बाद उनको समुद्र के पानी में फेंका गया है। तो इस तरीके से 20-20-20 करके सैकड़ों लोगों के सर फटे, सैकड़ों लोगों को नमक के पानी में फटे हुए सर के साथ फेंका गया और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये एक ऐसी घटना है जिसको कायदे से तो आजाद भारत के बच्चों के इतिहास के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था। आगे चल करके जरूर लिखा है लोगों ने, जब उनको पता चला इसके बारे में, बिपिन चंद्रा जी वगैरह ने इसका वर्णन किया है। लेकिन मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया, यह बताने के लिए
कि उस 30 साल की अवधि में गांधी जिनके बुजुर्ग स्वरूप को हम लोग देश भर में आज देखते हैं मूर्तियों के रूप में, यहाँ तक कि रुपए के नोट पर भी जो हम लोग देखते हैं एक बुजुर्ग गांधी है, वो गांधी वास्तव में एक युवा थे और इन सारे गुणों को लेकर के किस माने में वो अलग होते हैं। हम उनको साधारण मानव से अलग नहीं मानते हैं। आप नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कईयों ने आप में से गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी होगी और सबने ये पढ़ा होगा, जोशी जी, is the Facebook live also going on? जोशी जी, हेलो, जोशी जेकब। हाँ, तो साथियों बीच में एक व्यवधान आ गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो can is the Facebook also live? Is Facebook also live? Okay, okay, okay. तो मैं जो बता रहा था कि ये धारासना की घटना हुई और अभी जोशी ने कहा कि तमाम सोशलिस्ट नौजवान थे और वो लोग कितना प्रभावित हुए थे। साथी जोशी जेकब को बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उस जमाने के तमाम सोशलिस्ट नेहरू को अपना नेता मानते थे। जोशी जेकब आप भी ध्यान दीजिए, काफी हिंदी समझने लगे हैं और गांधी जी का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन नेहरू जो प्रचलित समाजवादी विचारधारा या रूस की क्रांति हो चुकी थी उससे भी प्रभावित थे और हमारे जिन समाजवादी नेताओं की बात अभी जोशी जेकब ने जिनका नाम लिया, अरुणा, आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ नहर अली, ये सारे के सारे लोग जवाहरलाल जी को ही उस समय अपना नेता मानते थे। बहुत समय लग गया उन लोगों को गांधी जी के करीब आने में, सचमुच करीब आने में। सम्मान जरूर करते थे, लेकिन और 42 में वो मौका आया जब पूरा के पूरा कांग्रेस का नेतृत्व जेल चला गया था 9 अगस्त को, तब ये नेतृत्व जो समाजवादियों का था उन लोगों ने भूमिगत रहते हुए अपना जो है कार्यक्रम चलाया। मैं गांधी की आज चर्चा करना चाहता हूं और एक क्रांतिकारी के रूप में हर क्रांति में बुरे को समाप्त किया जाता है और अच्छाई को लाया जाता है। अच्छाई को लाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बुराई जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं, क्रांति में विश्वास करने वाले कई लोग ये सोचते हैं कि पहले बुराई को समाप्त हो जाने दो, उसके बाद अच्छाई आएगी। लेकिन गांधी जी ये सोचते थे कि जिस सपने को हम देखते हैं, जिस दुनिया का सपना हम देखते हैं, जिस समाज का सपना हम देखते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रतिबिंब हमारे कामकाज में दिखाई देना चाहिए। जिस समूह के साथ हम काम करते हैं उस समूह के तौर तरीके में वो प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए और इसलिए ये गांधी जी का यकीन था। और जो सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई 1942 में हुई, उसके पहले 1941 में ही गांधी जी ने ये रचनात्मक कार्यक्रम नाम की अपनी एक छोटी सी पुस्तिका जारी की।
क्या था इस पुस्तिका में? शुरुआत में ही गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र को लेकर के जो हम लोगों के क्या देश भर में, दुनिया भर में लोगों के दिमाग में एक काफी एक धारणा व्यापक है कि अगर पूछा जाए किसी से, आपसे भी मैं पूछता हूं कि लोकतंत्र में सबसे शक्तिवान क्या है, तो लोग कहेंगे पार्लियामेंट है, संसद है सबसे शक्तिवान। और वहां से जो शक्ति है लोकतंत्र की शक्ति, वो धीरे धीरे टपकते टपकते परकुलेट होते होते आम आदमी तक पहुंचती है। गांधी जी का कहना था कि ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसी पुस्तिका में उन्होंने कहा रचनात्मक कार्यक्रम में कि ब्रिटेन का के प्रति जो हम लोग की एक मोहिनी रही है, उस मोहिनी के वजह से हम लोग सोचते हैं कि पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र के अंदर होती है। और उसका खंडन करते हुए गांधी जी कहते थे कि सबसे बड़ी ताकत तो आम जनता लोगों के बीच होती है, लोगों की होती है। वे लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं 5 वर्ष के लिए, और उन 5 वर्ष के लिए वो संसद में भेजते हैं कुछ लोगों को, लेकिन असली ताकत जो है वो आम लोगों की है। और उन आम लोगों की सिविल नाफरमानी की ताकत या सिविल डिसोबीडियंस की जो ताकत है, वही लोकतंत्र में शक्ति का पावर हाउस है, वो शक्ति का भंडार है। आम जनता की सत्याग्रह की जो ताकत है वो शक्ति का भंडार है। ये शुरुआत में ही उस पुस्तिका में कहते हैं गांधी जी। और उसके साथ साथ जो अलग अलग रचनात्मक कार्यक्रम वो लेते हैं, वो मुझे लगता है उस समय समाजवादियों ने काफी मजाक उड़ाया था। साथी जोशी जेकब का भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जयप्रकाश नारायण ने रचनात्मक कार्यक्रम जो गांधी जी के थे उसका मजाक उड़ाते हुए एक पुस्तिका निकाली थी कि इससे क्या होगा, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए। लेकिन मैं आज जिक्र करना चाहता हूं उसी रचनात्मक कार्यक्रम में से कुछ उदाहरण के लिए प्रमुख मुद्दों का। महिलाओं का सवाल गांधी जी जब उठाते हैं रचनात्मक कार्यक्रम में, तो उस समय कहते हैं कि जो और 41 में कह रहे हैं, और उसके पहले कई सत्याग्रह हो चुके थे जिसमें भारत की महिलाओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया था। तो गांधी जी शुरू करते हैं कि हालांकि सत्याग्रह के माध्यम से भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आ चुकी हैं, फिर भी वो शुरुआत करते हैं इस बात से कि वो नियम कायदे, वो परंपराएं जिनको बनाने में महिलाओं का कोई हाथ नहीं रहा है, उन नियमों के तहत, उन परंपराओं के तहत महिलाओं को सताया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। महिलाओं के बारे में जब गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में कहते हैं तो इस बात को कहते हैं। जब किसानों की चर्चा करते हैं गांधी जी, तो साफ तौर पे उनको कोई से भ्रम नहीं है। वो उस जमाने में खेती से जुड़े हुए ज्यादा लोग थे देश में। हम सब जानते हैं कि खेती से जुड़े हुए लोगों की तादाद लगातार कम होती जा रही है, और उसका कारण है खेती लगातार घाटे का धंधा रही है, और इसीलिए खेती से लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। वो मजदूर बन जाएं, शहरों की झुग्गी झोपड़ी में चले जाएं, आकर के मोटा श्रम करें। लेकिन एक मोटा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा आपको कि 1947 में
16% लोग जो खेती से जुड़े हुए थे, उनमें से 16% लोग भूमिहीन थे, और आज करीब 28-29% लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं वो लोग भूमिहीन हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि खेती चूंकि घाटे का धंधा है, और किसान को जब भी जरूरत आती है, परिवार में अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए, अगर किसी बच्चे को उच्च शिक्षण संस्था में दाखिला दिलाना हो, आप जानते हैं कि शिक्षा और ऊपर की शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, तो ऐसे मौकों पर किसान जमीन अपनी बेचने के लिए भी मजबूर होता है, और उसका नतीजा ये है कि 47 में जो 16% भूमिहीन थे, आज 27-28% भूमिहीन हैं। और फिर भी गांधी जी सन 41 में कहते हैं कि अगर देश का पूरा के पूरा किसान मन बना ले, निर्भय हो जाए, तो इन अंग्रेजों की तमाम पुलिस और तमाम फौज किसानों को दबा नहीं सकती है। जिस रचनात्मक काम को एक सुधारवादी मान करके ज्यादातर लोग उस जमाने में गांधी जी के साथी लोग भी आत्मसात नहीं कर रहे थे, उन रचनात्मक कामों में ये बात है। जब आर्थिक समानता की बात रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी जी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो कुंजी है स्वराज की, और पूंजी और श्रम के बीच जो संघर्ष चला आ रहा है, इसका अगर समाधान नहीं होगा, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, गांधी जी कहते हैं कि अगर समाधान नहीं हुआ तो उसका नतीजा होगा कि खून बहेगा, रक्त वाली क्रांति होगी। अगर इसका समाधान नहीं किया जाता है, जो लगातार बढ़ने वाली ये गैर बराबरी है, ये कोई माओवादी चिंतक नहीं कह रहा है, ये कोई हिंसा में यकीन करने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये महात्मा गांधी जहां आर्थिक विषमता के बारे में रचनात्मक कार्यक्रम, उसका रहस्य नामक जो पुस्तिका है, उसमें इस बात को कह रहे हैं। उसी तरीके से मैं जिक्र करना चाहूंगा, अभी पिछले 3-4 सालों से हमारी केंद्र सरकार ने सफाई को मुद्दा बना के, और उसमें गांधी जी के वो गोल गोल चश्मे भी लगा देते हैं ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोग, कि गांधी जी का तो यही प्रतीक है और हमारा सफाई अभियान है। लेकिन सफाई के बारे में जो बुनियादी सोच, और वो भी रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा था, पहली बात गांधी जी कहते हैं कि भारत के समाज में श्रम का काम और बुद्धि का काम, इनके बीच में जो खाई है, उस खाई के वजह से ये सफाई वाला कार्यक्रम अपनाने की जरूरत है। आशा क्या था, इतने वर्षों में वो समझ चुके थे कि भारत की सामाजिक व्यवस्था में मेहनत का काम, श्रम का काम करने वाले कुछ लोग हैं, और बौद्धिक काम करने वाले कुछ लोग हैं। ये श्रम और बुद्धि का, कलम और कुदाल के बीच में जो फासला है, इस फासले को पाटने की जरूरत है, और इसलिए सफाई वाली बात वो कहते हैं। उससे ज्यादा बुनियादी बात यह है कि ये जो मोदी जी के जमाने में या मनमोहन सिंह के जमाने में जो हमारी अर्थव्यवस्था है,
उस अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम गहराई से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाली ये व्यवस्था है। हमारे साथी सुनील और साथी स्मिता ने एक लेख लिखा था कि सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाली ये अत्याधुनिक औद्योगिक व्यवस्था, और उस व्यवस्था के बारे में कहने में यहाँ मैं इस पर आना चाहूंगा। उस व्यवस्था को लेकर के गांधी जी की साफ सोच थी, एक वैकल्पिक सोच थी। वो चुनौती देते थे इस व्यवस्था को। उनकी जो पुस्तिका हिंद स्वराज है वो पूरी के पूरी इस अत्याधुनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली पुस्तिका है। भारत आने के बहुत पहले लंदन से जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तब जहाज में उन्होंने वो पुस्तिका लिखी थी। लेकिन बहुत वर्षों के बाद जवाहरलाल जी से जब बहस हो रही थी और गांधी जी ने इस बात को कहा था, आपको मिल जाएगा, मैं आपको उसका स्रोत भी बताऊंगा। यूं तो जवाहरलाल जी के कलेक्टेड वर्क्स में भी मिलना चाहिए, लेकिन गांधी जी के सचिव प्यारे लाल जो थे उनकी महात्मा गांधी द लास्ट फेज जो ये किताब है उसमें ये पूरा जो पत्राचार है जवाहरलाल जी और नेहरू के बीच में, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। उस पत्राचार में यही गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे यानी नेहरू के और मेरे दृष्टि में जो भेद है वो भेद जनता के सामने आना चाहिए। जवाहरलाल जी ये नहीं मानते थे कि देश का विकास गांव केंद्रित होगा। इस चीज को जवाहरलाल जी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि गांव की क्या हालत है गांधी जी। तो उस बहस को जरूर आप लोग देखिए, नेहरू और गांधी के बीच में जो पत्राचार हो रहा है, और मेरा पूरा विश्वास है कि उस बहस को अगर रखा जाएगा तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जो जवाहरलाल जी को तमाम बातों को लेकर के गाली देते हैं, इस बात को लेकर के जवाहरलाल जी के साथ खड़े होंगे, गांधी के विरुद्ध खड़े होंगे। तो वो एक पत्राचार है। तो इससे क्या हुआ, जो अत्याधुनिक इस औद्योगिक व्यवस्था पर जो गांधी सवाल उठा रहे थे, जिसके नकारात्मक पहलू उस समय भी आ गए थे और आज भी आ गए हैं। आज पूरा के पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी को झेल रहा है। आज पूरे के पूरे विश्व में तमाम प्राकृतिक संसाधनों की का जो भंडार है उसकी सीमा के बारे में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, दुनिया के तमाम वैज्ञानिक ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज पेट्रोल का भंडार जो हमारी पृथ्वी के अंदर है वो कितने दिन चलेगा, कोयले का भंडार जो इस पृथ्वी के अंदर है कितने दिन चलेगा। ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन कितने वर्ष चलेंगे इस औद्योगिक व्यवस्था के तहत। ये कोई गांधीवादी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में आप चले जाएंगे, भूगर्भ शास्त्र के विभाग में, तो वहां का कोई रिसर्च स्कॉलर भी आपको बता देगा कि ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन और कितने दिन चलने वाले हैं। और वैसे में इसके बावजूद हम विकल्प की बात नहीं सोचते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये पर्यावरण वाला जो आंदोलन है जो यूरोप में भी है, ग्रीन पार्टी बन गई है, तो वो लोग इसके बारे में सोचते होंगे। तो हम आपको एक मामूली एक बारीक फर्क आपके सामने जो है उसको रखना चाहेंगे। यूरोप का आदमी जब ये प्राकृतिक संसाधनों की लूट के बारे में सोचता है तो हमारे जैसे लोगों का मानना है कि उसका अपना उपभोग शुद्ध हो,
इसके बारे में तो सोचता है कि जो हम खा रहे हैं उसमें कीटनाशक अवशेष न हो, शुद्ध हो। इसीलिए आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन के जो मानदंड है पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बारे में, वो सबसे कड़े हैं। हम लोग कोका कोला पेप्सी कोला के खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो उदाहरण उसका देना चाहूंगा कि भारत ने मल्टीनेशनल कंपनी है कोका कोला पेप्सी कोला, तो भारत से एक्सपोर्ट किया गया अमेरिका पेप्सी कोला ही था। दुनिया के कई देशों में पेप्सी कोला चलता है, कोका कोला चलता है, लेकिन अमेरिका ने भारत का बना हुआ पेप्सी कोला अमेरिका में वितरित होने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? क्योंकि उनको पता था कि भारतवर्ष में जो कोका कोला बन रहा है, पेप्सी कोला बन रहा है, जिस भूगर्भ जल से बन रहा है उसमें कीटनाशक अवशेष की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। जो WTO के फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, उन मानदंडों के तहत उन्होंने उसको मना कर दिया। तो ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? वो शुद्ध खाना चाहते हैं, अधिक दिन तक भोग करना चाहते हैं कि दुनिया में भले खत्म हो जाए। इसीलिए हम टोकना चाहेंगे कि वो ग्रीन पार्टी पर्यावरण के बारे में चेतना भले हो, लेकिन वो दुनिया में आर्थिक विषमता के बारे में नहीं सोचती है। वो तीसरी दुनिया के गरीबी के बारे में नहीं सोचती है। और उसका कारण यह है कि जो अत्याधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, उस औद्योगिक व्यवस्था के विकल्प के बारे में भी नहीं सोचती है। वो पर्यावरण के बारे में तो कुछ बातें कहते हैं वो लोग, और बहुत हमें भी अच्छी लगेंगी वो बातें, लेकिन बुनियादी तौर पे तब आप लोगों के मन में जरूर ये सवाल उठेगा कि इस अत्याधुनिक व्यवस्था के विकल्प को गांधी औजार क्यों नहीं बना पाए? ये सच्चाई है कि नहीं बना पाए? और इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। गांधी के आसपास जो लोग थे, जो उनके सबसे करीबी लोग थे राजनीतिक रूप से, जब भी आंदोलन करना होता था, ये जवाहरलाल जी, सरदार पटेल, ये लोग सब गांधी की शरण में जाते थे। गांधी जी भी कहते थे, देखो ये अहिंसक संघर्ष के मामले में तुम लोगों से सबसे मेरा ज्यादा अनुभव है, इसीलिए तब बुला लेना मुझको। उन्होंने कांग्रेस की 54 वाली सदस्यता जब छोड़ दी थी, उसके बाद भी जो बड़े आंदोलन हुए तो कांग्रेस रेजोल्यूशन करती थी कि इसका नेता गांधी होगा। लेकिन उस नेतृत्व देने वाले गांधी को भी ये पता था कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो इस आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के खिलाफ, जैसे मैं हूं वैसे जवाहरलाल नहीं है, वैसे जयप्रकाश उस समय तक नहीं थे। जयप्रकाश तो काफी देर में, लोहिया के भी काफी बाद, लोहिया ने छोटी मशीन का सिद्धांत पचमढ़ी में दे दिया। जयप्रकाश जी ने तब तक नहीं छोड़ी थी सोशलिस्ट पार्टी, और उसके बाद वो विनोबा जी के संपर्क में आए, तब गांधी के विचार को माना। तो इसलिए मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये तमाम समाजवादी और कांग्रेस के भीतर के भी जो वाम सोच वाले लोग थे, कोई भी इस अत्याधुनिक व्यवस्था के खिलाफ एक गांधी जी से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। और इसीलिए वो मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बना नहीं। हालांकि गांधी जी छोड़ते नहीं थे, उससे समझौता माने उसको छोड़ा हुआ हो भले,
लेकिन नेहरू को भी उन्होंने कह दिया कि जब हिंद स्वराज मैंने लिखा था और आज कोई फर्क नहीं आया है। ये बात भी साफ साफ नेहरू जी को उन्होंने, जब ये बहस चल रही थी और फिर आगे चल करके ये पूरी बहस आगे चल भी नहीं पाई थी और ये साफ साफ अंतर सामने आ रहा था। तो साथियों, मैं एक और मुद्दे की तरफ आना चाहूंगा, इसको ज्यादा लंबा न खींचते हुए, और विशेषकर नौजवानों से। शुरुआत में मैंने कहा आज जो मुझे जोशी जेकब ने विषय दिया है, ये विषय आसान भी है और कठिन भी है। और बताया मैंने कि ये गांधी जी की शैली थी कि वो कहते थे कि आसान भी है कठिन भी है। इसी तरह का एक सवाल आरएसएस के लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने महात्मा गांधी से उनको अपने कार्यक्रम में बुलाया था और गांधी जी गए थे। वहां गोलवलकर थे। गोलवलकर ने पहले खूब गांधी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदू धर्म के आप महान एक विभूति हैं। तो गांधी ने कहा कि मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन मेरा हिंदू धर्म ऐसा बहिष्कारवादी नहीं है जैसा आपका। आप लोगों के बारे में जो मैं शिकायतें सुन रहा हूं, उन शिकायतों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस तरह से अगर हिंदू धर्म चला तो वो श्रीहीन हो जाएगा। गांधी जी के साथ के किसी ने कहा कि अरे बापू, इन लोगों ने तो बड़ा सेवा का काम किया है शरणार्थियों के बीच में। उसका जवाब गांधी जी ने दिया कि इस तरह का सेवा का काम तो हिटलर और मुसोलिनी ने भी किया था। मैं जो बहुत बात कर रहा हूं बहुत कड़ी लग सकती है, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कही है। और कहां कही है आप देख लीजिए। महात्मा गांधी द लास्ट फेज, जो हिंदी में पूर्णाहुति नाम से छपी है, महात्मा गांधी जी के सचिव प्यारे लाल जी की लिखी हुई किताब है। उस किताब में ये पूरा प्रसंग है। और उसी सम्मेलन में गांधी जी से सवाल पूछा जाता है कि आप तो गीता में मानते हैं। गांधी जी कहते हैं हाँ, गीता में बहुत मानता हूं। तो कहते हैं कि गीता के 3 अध्याय में कहा गया है कि पापी का नाश करो, तो क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जो मैंने शुरू में कहा, गांधी जी अपनी जो विशिष्ट शैली थी उसमें वो कहते हैं कि इसका उत्तर हाँ और ना दोनों है। ये गांधी जी कहते हैं कि पापी का नाश करने के पहले आपको ये तय करना हो। कौन तय करेगा कि पापी कौन है? महात्मा गांधी कहते हैं जो पहले यह कह सकेगा, जो निष्पाप होगा, वो तय कर सकेगा कि पापी कौन है। उसके बाद सवाल आता है, पापी की बात सुनकर के वो खत्म हो जाता है, पापी बदल जाता है कि क्या होता है, ये बात की बात है। तो इस पर वो चुप हो गए लोग, क्योंकि वो जानते थे कि उन लोगों के मन में द्वेष है, उन लोगों के अंदर पाप है, कपट है। और इस बात को महात्मा गांधी, उतना व्यापक ये नहीं हुए थे आरएसएस के लोग, लेकिन 1942 में मैं बता रहा हूं, 9 अगस्त को गांधी जी गिरफ्तार हुए। 9 अगस्त को जो हरिजन छपा था, महात्मा गांधी का अखबार, 9 अगस्त के दिन का आपको कई जगह मिल जाएगा, कलेक्टेड वर्क्स में मिल जाएगा। हरिजन को भी किताब के रूप में छापा गया है, वहां मिल जाएगा। तो उसमें एक प्रसंग है, उस प्रसंग को बताना चाहूंगा। डॉक्टर अंसारी के यहाँ
महात्मा गांधी दिल्ली में आकर के टिकते थे। तो डॉक्टर अंसारी को उर्दू में एक चिट्ठी मिली जिसमें आरएसएस की शाखा के बारे में विवरण था कि वो शाखा में क्या होता है, कवायद होती है, कसरत होती है, और उसके बाद एक व्यक्ति भाषण देता है जिसमें वो कहता है कि अभी आजादी मिल जाने दीजिए, आजादी मिल जाने के बाद हम इस देश से मुसलमानों को बाहर कर देंगे। तो ये पूरी रिपोर्ट उर्दू में लिख करके डॉक्टर अंसारी को दिल्ली का एक आदमी, दिल्ली का एक नागरिक भेजता है और डॉक्टर अंसारी उसको महात्मा गांधी के पास भेजते हैं। महात्मा गांधी उस पत्र को पूरा देते हैं, जो पूरा डिस्क्रिप्शन है आरएसएस की शाखा का 1942 में, और उसके बाद कहते हैं कि ये जो नारा दिया जा रहा है भाषण के बाद, ये भाषण कितना, ये नारा कितना गलत है। हिंदुस्तान अगर किसी, उसमें किसी धर्म का आधिपत्य अगर होने जा रहा है तो वो हिंदुस्तान और वो स्वराज नहीं होगा। हिंदुस्तान जितना हिंदू का है उतना ही पारसी का है। छोटे छोटे समुदाय जिनके बारे में कई नौजवान जानते नहीं होंगे, फिरोज गांधी का जो धर्म था, उनके पिता का वो आस्तिक उतना थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन पर्शियन जो ये पारसी समुदाय जो है, गुजराती बोलते हैं, बहुत कम संख्या में लोग हैं। तो पारसी का, सिख का, ईसाई का, मुसलमान का भी देश उतना ही है, ये बात गांधी जी साफ साफ कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र के बारे में, जो हिंदू राष्ट्र की जिस तरीके से कल्पना है, उस कल्पना के बारे में मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, कुछ चीजें नौजवानों को संबोधित करके कहना चाहता हूं कि साथियों, गांधी जी के बारे में कई तरह के विचारधारा के लोग काफी खिलाफ में बोलते रहते हैं। जैसे उदाहरण दूं, और फिर उनमें परिवर्तन भी आता है। जैसे हमारे कम्युनिस्ट भाई भी काफी विरोध किया करते थे। आज बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस के तमाम वामपंथी दल आज 2 अक्टूबर के नाते गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं। हाथरस में जो कांड हुआ है, उस बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, मैं सीधे कह रहा हूं, सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, हाथरस के जिला प्रशासन ने जो कांड किया है, उस कांड को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टियां बैठी हुई हैं बनारस में गांधी प्रतिमा के पास। अभी 1-2 साल 3 साल पहले की बात है, देश के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक इरफान हबीब साहब का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो सीपीआईएम का की छात्र शाखा है, उसने एक लेक्चर आयोजित किया। और नौजवानों से मैं कहूंगा कि आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि गांधी फाइनेस्ट आवर, गांधी का सर्वोच्च सबसे ज्यादा आकर्षक जो पीरियड रहा है, उसके बारे में इरफान हबीब साहब का भाषण जेएनयू में एसएफआई के द्वारा आयोजित है। उस भाषण को जरूर सुनिएगा कि एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी, और अंत में निष्कर्ष के रूप में बताते हैं इरफान हबीब साहब कि मेरे जैसा नौजवान विभाजन के समय पाकिस्तान इसीलिए नहीं गया क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी को देखते थे और हमारे अंदर ये यकीन था कि अगर गांधी है तो भारत
सेकुलर रहेगा, और इसीलिए हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, ये इरफान हबीब ने उस भाषण के अंदर कहा। जो लोग कभी आलोचना किया करते थे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये क्या परिवर्तन हुआ। आज कल एक सकारात्मक बातें भी लेना चाहिए हम लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, आप में से बहुत से नौजवानों में ने पढ़ा होगा, पहले सरकारी पाठ्य पुस्तकों में भी गांधी की एक तावीज आती थी। मुझे याद है कि मेरी बच्ची जब पढ़ती थी तो एनसीईआरटी के किताबों में आता था गांधी की तावीज, या अंग्रेजी में कहते हैं गांधी जी तलिस्मान। तो क्या था कि सबसे गरीब व्यक्ति जिसको आपने देखा हो, अगर कभी आप परेशानी में पड़ते हैं, किसी चिंता में, व्यक्तिगत उधेड़-बुन में भी पड़ते हैं, तो उस गरीब की याद कीजिए, उस सबसे ज्यादा वंचित की याद कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी वो चिंता पिघलती जा रही है, दूर होती जा रही है। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। वो जो उद्धरण है, उस उद्धरण को देते हुए कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुओ मोटो अपने से बिना किसी के अप्लाई किए हुए एक फैसला दिया है। मैं उस फैसले से बहुत ही आशान्वित हूं, उसका जिक्र करना चाहता हूं आज के दिन। ये गांधी के सिद्धांतों पर देश और व्यवस्था और न्यायपालिका भी नहीं चल रही है। ऐसे में उन दो जजों को मैं सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने हाथरस की घटना को लेकर के एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट को आप लाइव लॉ वगैरह में जाएंगे तो पीडीएफ में आपको वो जजमेंट मिल जाएगा। उस जजमेंट की शुरुआत उन्होंने की है गांधी जी के उस तावीज से, जिस तावीज में गांधी जी कहते हैं, और वो उसके बाद ये जज लोग कहते हैं कि सबसे दबे कुचले की बात कहने वाले महात्मा गांधी को कल यानी कि आज के दिन 2 अक्टूबर को हम लोग याद करने जा रहे हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस परिवार के साथ, उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तरीके से उसकी लाश को परिवार से अलग रख करके जलाया गया है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बेहियाई से कह रहा है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, उन सारे लोगों को हाई कोर्ट में मौजूद होने का आदेश कल की तारीख में उन दो जजों ने दिया है, और गांधी को याद करते हुए दिया है, इसलिए भी हम उनको सलाम करना चाहेंगे। तो साथियों, अंत में हम फिर कहना चाहेंगे कि 150 साल गांधी जी के पूरे हो रहे हैं, और 2 साल तक ये मनाने की बात है। फिर भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस तरीके से गांधी की मूर्तियां देख करके कोई नौजवान सोच सकता है कि गांधी तो केवल बूढ़ों के लिए है, उसी तरीके से ये जो सरकारी आयोजन है, बड़े बड़े सेमिनार होंगे, करोड़ों रुपया खर्च होगा, इससे पढ़ा लिखा आदमी भी गांधी को याद नहीं रखने वाला है। मुझे लगता है और मैं मानता हूं कि किसी भी बड़े व्यक्ति को तब याद रखा जाएगा जब किसी बड़े जन आंदोलन का औजार उसे बनाया जाए। आज डॉक्टर आंबेडकर एक बड़े सामाजिक आंदोलन का औजार हैं, इसीलिए उनको कभी भुलाया नहीं जाएगा। आज यूरोप में और अमेरिका में भी ऐसे नियो नाजी ग्रुप हैं जो हिटलर को मानते हैं। तो जब तक वो जो आंदोलन है, नियो नाजी आंदोलन, वो हिटलर को याद करेगा तो हिटलर याद रखा जाएगा। लेकिन साथियों,
गांधी को तभी याद रखा जाएगा जब कोई जीवित जन आंदोलन उसको गांधी को अपना औजार बनाए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आजाद भारत के अंदर जो गांधी को मानने वाले लोगों ने जो कई क्रांतिकारी संघर्ष चलाए हैं, 2-3 का उदाहरण देना चाहूंगा। भूमि सुधार की बात होती है और आज जानबूझ करके उसका उदाहरण देना चाहूंगा। आजादी के पहले ही एक कंसेंसस बन चुका था कि देश से जमींदारी को खत्म करना है, और 52, 54, 55 आते आते लगभग सभी राज्यों ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट बना लिया। ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, संसद ने नहीं बनाया जमींदारी एबोलिशन एक्ट। उत्तर प्रदेश ने अलग बनाया, महाराष्ट्र ने अलग बनाया, उड़ीसा ने अलग बनाया, केरल और बंगाल ने अलग बनाया, बिहार ने अलग बनाया। ये इतना जोर दे करके मैं क्यों कह रहा हूं? आजादी के पहले से एक कंसेंसस बन चुका था, सर्वानुमति, एक सर्वसहमति बन चुकी थी, जमींदारी खत्म होनी चाहिए। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होगा। इस बात को सभी सामाजिक राजनीतिक लोग मानने लगे थे, और जो भूमि सुधार के सरकार ने भी कुछ मामूली कार्यक्रम लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जमीन विनोबा भावे ने भूदान में प्राप्त किया। आप आंकड़ा जोड़ लीजिए कि सरकार में सीलिंग से अधिक जो जमीनें निकली देश भर में कितनी निकली, और विनोबा भावे को जो वॉलंटरीली अपने आप जो जमीन मिली वो कितनी मिली। उसके साथ साथ एक और उदाहरण जिस पर हमें गर्व है, जिस धारा से मैंने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने भी भूमि समस्या को उठाया। बोध गया के अंदर, जो बोध गया के महंत के परिवार की हजारों हजार एकड़ जमीन एक मठ के नाम से थी, उस मठ की जमीन को मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, इस गैर हथियारबंद शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नौजवानों ने बंटवाने का काम किया। साथियों, इन उदाहरणों को हम क्यों दे रहे हैं, या सन 74 की भी बात हम लोग कहें, तो ये सारे उदाहरण हम जो दे रहे हैं वो उन आंदोलनों के उदाहरण दे रहे हैं जिन आंदोलनों ने सचमुच गांधी से प्रेरणा पाई थी। ये विकास की अवधारणा को लेकर के कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं बनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 15 दिन का पखवाड़ा जो है, इसमें हम लोग किशन जी को भी याद कर रहे हैं, और मुझे याद आता है कि किशन जी बड़े बांधों के खिलाफ शुरुआत में नहीं थे। वो हम लोगों से सवाल करते थे कि सिंचाई का विकल्प बताओ। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, पिपरिया में हमारी बैठक हो रही थी और बहुत देर तक शिक्षा शास्त्री अनिल सतगोपाल ने बड़े बांधों को लेकर के किशन जी से चर्चा की, और उस चर्चा के बाद किशन जी इस बात से कन्विंस हुए कि बड़े बांधों का विरोध करना है। और निश्चित तौर पे हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वो एक आंदोलन था जिस आंदोलन के वजह से
विकास की जो अवधारणा है, उस विकास की अवधारणा जो आज भी वही प्रचलित है, बड़े उद्योगों से केंद्रित विकास, तो उस अवधारणा पर सवाल उठाने पर सवाल निश्चित तौर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के इस लंबे संघर्ष के बाद लोगों के मन में भी वो सवाल उठने लगा। उड़ीसा के हमारे किसान साथियों ने देखा कि भले ही किसानों के नाम पर हीराकूद बांध बन गया हो, लेकिन आज उस बांध का पानी खेती में सिंचाई के लिए नहीं दिया जा रहा है। दूर दूर तक, झारसुगड़ा तक बड़े उद्योगों को मदद पहुंचाने के लिए उस बांध का पानी, हीराकूद बांध का भी पानी दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे पश्चिम उड़ीसा के कृषक साथी आंदोलन करते हैं कि ये धोखा दिया गया था उस समय, यह कह करके, और बड़ा बांध बना लिया गया था। तो साथियों, उसके साथ साथ एक बुनियादी बात कह करके समाप्त करूंगा, अंतिम मुद्दा कह करके। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन के दिन देश के नौजवानों ने बड़े उत्साह के साथ बेरोजगारी दिवस बनाया, बड़े उत्साह के साथ, और काफी सफल रहा। उन नौजवानों के बीच में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं, और ये चर्चा निश्चित तौर पर हमारे नेता किशन पटनायक और महात्मा गांधी, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी को समझने में जिन लोगों से मुझे सहयोग मिला है, उनमें किशन पटनायक के विचार, सच्चिदानंद सिन्हा के विचार, सुनील के विचार, ये जो हमारे नेता थे, इन लोगों के विचारों से गांधी को और स्पष्ट तौर से समझने में सहूलियत मिली है हमें। और अब मैं कहना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या रोजगार का मतलब केवल टेबल कुर्सी वाला नौकरियां होती हैं? यही क्या रोजगार है? अगर यही रोजगार है तो इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन मेरी समझ से मजबूती के साथ नहीं चल पाएगा। इस आंदोलन में भी ये मोदी के जन्मदिन वाले में भी किसान घर के बेटों ने भाग लिया था। और उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि खेती घाटे का धंधा है। और अभी जैसे मैंने कहा, अभी जो कानून बदले गए हैं, एक बार फिर से नई जमींदारी आ रही है। ये जमींदारी अडानी की होगी, अंबानी की होगी, ये जमींदारी वॉलमार्ट की हो सकती है, जो सीधे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद जब मजबूर हो जाएगा किसान अपनी जमीन छोड़ने के लिए, तो फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी। इस बात को किशन जी कहा करते थे कि खेती है अमेरिका में, लेकिन किसान नहीं है। उस दिशा में देश के संघीय ढांचे पर कुठाराघात करते हुए संसद में जो कानून विधानसभा को पारित करने का अधिकार था, ये कानून बदले गए हैं। और उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि खेती अगर घाटे का धंधा है, अगर आपके पिताजी को आपकी पढ़ाई की फीस बढ़ती है और जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है, भगवान न करे आपके यहाँ कोई बड़ी बीमारी होती है घर में और जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है, तो क्या आप उस खेती को संपूर्ण या सही माने में रोजगार मानेंगे? नहीं माना जा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी की सरकार में ये बड़े उद्योगों से अलग,
जो सबसे ज्यादा रोजगार था, खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार कौन सा था? सबसे बड़ा रोजगार था हैंडलूम का, कपड़ा बिनने का। ये हैंडलूम का रोजगार खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ उसकी चर्चा करेंगे कि क्या कपड़ा नीति थी, किस कपड़ा नीति के तहत कपड़ा खत्म हुआ। छोटे उद्योग 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने 807 ऐसे सामानों के बारे में पार्लियामेंट से कानून बनाया था कि इन 807 सामानों को केवल स्मॉल स्केल में बनाया जा सकेगा, केवल कॉटेज इंडस्ट्री में बनाया जा सकेगा, बड़े उद्योगों में नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के तहत कांग्रेस के जमाने में ही इनमें से सैकड़ों सामानों को हटा दिया गया। बाकी बचे थे केवल 20 सामान। कौन से 20 सामान थे आप लोग को जानना चाहिए कि वो 20 सामान केवल बचे हुए थे जो केवल कुटीर उद्योग में बनने के लिए थे, केवल छोटे उद्योग में बनने के लिए जिनका रिजर्वेशन था। जैसे पापड़ बनाना, दिया सलाई बनाना, मोमबत्ती बनाना, स्टेशनरी, रजिस्टर, कॉपी वगैरह बनाना, लोहे का शटर जो दुकान बंद करने के लिए होता है वो, इस तरह की चीजें, दिया सलाई, ये सारी चीजें केवल स्मॉल स्केल में बनेगी और कुटीर उद्योग में नहीं बनेगी। ये था 10 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो जो पार्लियामेंट से पारित कानून था उसके एनेक्चर में 807 सामानों की लिस्ट थी, जिसमें 20 सामान केवल बचे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने चालाकी किया, लोकसभा में नहीं गए उस कानून को खत्म करने के लिए। एनेक्चर में जो ये पूरी लिस्ट थी इसको जीरो कर दिया। उसका गजट हुआ, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया कि अब कोई सामान नहीं है जो केवल छोटे उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए रिजर्व रहेगा। बेरोजगारी ऐसे पैदा की गई नरेंद्र मोदी के समय में। कपड़े का ये जो बुनकरी है, हमारे यहाँ ये नियम था कि अगर पावर लूम रहेगा तो पावर लूम पे केवल कोरा कपड़ा बनेगा, प्लेन क्लॉथ, डिजाइन वाला कपड़ा नहीं बनेगा। लेकिन धीरे धीरे एक एक अपवाद उस कानून में भी लाते गए और आज ये हालत है कि दुनिया में जाना जाता है, मैं बनारस का रहने वाला हूं, बनारसी साड़ी, और पावर लूम पर बनी हुई बनारसी साड़ी और हैंडलूम पर बनी हुई बनारसी साड़ी दोनों आपके सामने रख दी जाएगी, आप अंतर नहीं कर पाएंगे। तो अंतर क्या आया? बनारसी साड़ी हाथ की बनी हुई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाता था बुनकर जब हाथ से बनारसी साड़ी बनाता था, और पावर लूम में एक दिन में 3 वैसी ही बनारसी साड़ी बन के तैयार हो जा रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? साथियों, इस देश में रोजगार तब बढ़ेगा जब आम जनता की जो जरूरतें हैं, मुट्ठी भर लोगों की जरूरतें नहीं, ध्यान दीजिएगा, जब मुट्ठी भर लोगों की जरूरतें जो विलासिता के लिए जो जरूरतें होती हैं विलासितापूर्ण, उन चीजों को बनाने के लिए आपको नया रोजगार देने की जरूरत नहीं है। उनके कारखाने ऑटोमेटेड होंगे, उसमें एक नया रोजगार अगर आपको वैसे अत्याधुनिक उद्योग में देना है तो करोड़ों रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और हमारे जैसे मुल्क में
जिस मुल्क में बजट का सबसे बड़ा जो हेड है वो क्या है, किसी भी साल का बजट देख लीजिए, हमारे साथी सुनील इस बात का ध्यान दिलाते थे कि सबसे बड़ा हेड जो है आजकल डिफेंस का नहीं है। आजकल सबसे बड़ा हेड जो हमारा विदेशी कर्जा है, उस कर्जे का जो किस्त है, उस किस्त पर जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट हमारे देश के बजट का सबसे बड़ा हेड है, तो वो देने में दिया जा रहा है। वैसी स्थिति में नया रोजगार आप कैसे पैदा करेंगे? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैदा करेंगे। आप पता कीजिए जा करके कि एयर कंडीशनर बनाने वाले कारखाने में कितने लोगों की जरूरत है, वहां एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के लिए कितना मार्जिनल पैसा लगेगा, और एक नया रोजगार बनाने के लिए ये अय्याशी वाली जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों का किसी भी चीज को ले लीजिए, तो उन चीजों के उत्पादन से इस देश में बेरोजगारी नहीं खत्म होने वाली है। बेरोजगारी खत्म होगी जो आम जनता की जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और केवल इतना नहीं, तालीम, चिकित्सा, इन सारी चीजों में आज लाखों लाख लोग एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं अगर सही नीतियां बने। आज भाड़े के लोगों से टीचर उन लोगों को बनाया जा रहा है, पैरा टीचर कहा जाता है। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए, अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस सवाल को उठाते हैं। आज हम लोग मानते हैं इस बात को कि पूरे फुल टाइम शिक्षक होना चाहिए, और उसकी गुंजाइश है तो रोजगार वहां पैदा होगा। तो जनता की जहां जरूरत है वहां उन जरूरतों को पूरा करने की बात आएगी, तो गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते की जो नीति है उससे हम रोजगार को भी पूरा कर सकेंगे। मैंने काफी समय लिया, हमारे आयोजक साथी टोक रहे हैं, इसीलिए फिर अंत में कहना चाहूंगा समाप्त करते वक्त कि गांधी को भूल जाएंगे हम लोग, और ये समाज, ये दुनिया अगर किसी बड़े जन आंदोलन का औजार हम लोग महात्मा गांधी को नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर करोड़ों रुपया आप सेमिनार पे खर्चा कर दीजिए, तमाम महात्मा गांधी के चश्मे को लगा करके आप नकली सफाई अभियान चलाइए, ये कचरा पैदा करने वाली व्यवस्था बढ़ती जाएगी और गांधी को भुलाया जाता रहेगा लगातार। गांधी के हत्यारों द्वारा, गांधी के से जिनको खतरा था वो तमाम लोग, क्योंकि गांधी से एक तरफ वो अंग्रेज साम्राज्यवादी घबराता था, दूसरी तरफ जो गांधी के दलितों के मंदिर प्रवेश से जो चिढ़ते थे। और उस जमाने में आपको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, 1931 में बाबा साहब से बातचीत के बाद निश्चित तौर पर गांधी जी पर भी उसका असर पड़ा, और आप देखेंगे कि बाबा साहब जो कहते थे कि गांधी जी आप कहते हैं कि ये छुआछूत, ये तो धर्म का मामला है, तो ये मैं धर्म वर्म का नहीं, हमारे लोगों को आप सामाजिक आर्थिक उत्थान कर दीजिए, बाबा साहब कहते थे। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग जोशी। तो हाँ, तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, गांधी जी और बाबा साहब की उन वार्ताओं के बाद बाबा साहब वो छुआछूत निवारक मंडल गांधी का बनाया हुआ उसके सदस्य बनते हैं, साल भर तक रहते हैं, और गांधी जी सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उस रचनात्मक कार्यक्रम को चलाते हैं। और धर्म की बात जो नकार रहे थे बाबा साहब, धर्म चिकित्सा और धर्मांतरण तक 1931 के बाद जाते हैं। ये हिंदू धर्म के अंदर जो विषमता मूलक बातें हैं उन पर चोट करना चाहिए, ये धर्म चिकित्सा के तहत बाबा साहब कहते हैं। तो साथियों,
समाजवादी जन परिषद के लोग वो जो, और अंत में ये कह के समाप्त करूंगा कि गांधी साफ कहते थे कि आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा मेरी बातों में, एकदम परस्पर उल्टी बातें मिलेंगी। गांधी जी कहते थे, उनकी मौलिक किताबों में टू द रीडर्स करके लिखा रहता है, और टू द रीडर्स में यही लिखा रहता है कि यू मे फाइंड टोटली कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स ऑफ माइंड, बट इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में आंख मूंद करके बाद वाली बात को आप मान लेना। तो जब जाति प्रथा को लेकर के हमने देखा कि गांधी तो अंतरजाति विवाह के रोक की बात 1920 में कह रहे हैं, लेकिन आते आते बाबा साहब से संवाद के बाद गांधी जी कहते हैं कि जो शादी सवर्ण और अवर्ण की नहीं होगी उस शादी में मैं जाऊंगा ही नहीं। तो ये अंतर आया। गांधी कहते थे कि सत्य का प्रयोग है तो बाद वाली बात को मानना, किसी भी मामले में गांधी का अध्ययन करना हो। और गांधी का संपूर्ण लिखा हुआ बोला हुआ शायद दुनिया में और किसी का उतना नहीं होगा, 100 से ऊपर वॉल्यूम में है। उसका कभी भी अध्ययन करना हो किसी भी विषय पर, तो गांधी के इस मौलिक सिद्धांत को याद रखना कि किसी भी विषय में बाद वाली बात की, जो बाद वाले डेट की जो बात है, उस डेट की बात को मानना, उस पर उस बात की तारीख में गांधी ने क्या कहा है उस बात को स्वीकार करना, आप सही गांधी को पाओगे। गांधी के साथ अन्याय नहीं करोगे, नहीं तो आप अन्याय करोगे। जो गांधी स्वयं बताता है कि मैंने सिगरेट पिया था, मैंने मांसाहार किया था, ये या अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ा था दक्षिण अफ्रीका में, अपने एक साथी का पखाना नहीं उठाया कस्तूरबा ने, तो ये सब हमको कैसे पता है? ये सब हमें पता है क्योंकि गांधी ने आत्मकथा में वो सब चीजें लिखी हैं। और हम में और उनमें शायद यही अंतर था कि उन गलतियों को लिखने के बाद गांधी ने उन गलतियों को दोहराया नहीं। तो उन गलतियों के बारे में भी हमें पता चलता है गांधी से ही। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने उन गलतियों को नहीं दोहराया और लगातार सत्य के प्रयोग कह करके इस बात को कहा कि बाद वाली बात को मानना। तो अंत में फिर ये कहूंगा कि जन आंदोलन का हथियार महात्मा गांधी बन सके, इसके लिए हम नौजवानों का आह्वान करना चाहेंगे और उनसे ये चाहेंगे कि विद्यार्थी युवजन सभा और समाजवादी जन परिषद से जुड़ने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।